Dear students, I am Professor Pankaj M. Patel from Vadasma Engineering College. Now, after completion of 3 lectures, we are further studying the chapter Water Requirement of Crops. In the first lecture, we understand what is the definition of irrigation. In second lecture, we understand the soil water and crop relationship. In third lecture, we understand what is the relationship between the duty, delta, and base period. And in this particular lecture, we are studying which are the factors affecting duty. This is a very important and very interesting point for the exam point of view also. Which are the factors affecting duty? The duty of water of canal system depend upon the variety of the factors. The factors are: number 1, methods and the system of irrigation. Number 2, modes of applying water to the crops. Number 3, method of cultivation. Number 4, time and frequency of tilting. Number 5, types of crop. Number 6, base period of the crop. Number 7, climatic condition of the area. Number 8, quality of water. Number 9, methods of assessment. Number 10, canal conditions. And number 11, characters of soil and subsoil of the canal. And last, character of soil and the subsoil of the irrigation fields. Now, one by one we understand these factors. So the first one is the methods and the system of irrigation. So the methods of irrigation we see in the first chapter: furrow irrigation, flood irrigation, sprinkler irrigation, drip irrigation. So in the methods of irrigation or the mode of application of water affects the duty of water, because water application efficiency is different for different soil. The drip irrigation method is the most efficient method. ड्रिप इरिगेशन मेथड में बहुत कम पानी का यूज करते हैं और लेस पानी की वेस्टेज होता है. तो इट इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड, सो इट ड्यूटी इज वेरी हाई. In sprinkler irrigation method also duty is also high because seepage losses are reduced. But in case of surface irrigation method, much water is spoiled. Therefore, its duty is low. However, in surface irrigation, in the furrow method, duty is relatively high because water is not applied to the entire land and therefore losses are very small. So you can see the irrigation like drip irrigation, sprinkler irrigation duty is high, and surface irrigation
duty is low. Now second, system of irrigation. In the perennial irrigation system, soil is continuously kept moist and hence less quantity of water is required for initial saturation of the soil. Due to the shallow depth of the water table, deep percolation losses are very small. You can see where there is a water table is high, the water we give to the farm which percolate in very less quantity. But in the inundation irrigation system, there is a wasteful use of water. There is a wastage of water. So as compared to perennial irrigation, the duty of water is very high. Now in case of tank irrigation, in tank irrigation we provide water by the tank. Duty is high because the commanded area is close to the tank and the transmission losses are very less. On the other hand, in canal irrigation, transmission losses are very high and duty is very low. Last, in case of lift irrigation means कुएं में से पानी खींचना with the help of machine or with the help of bullock. और उससे irrigation करना. Duty is high because commanded area is very close to the well, very near to the well. Whereas in the case of flow irrigation, duty is low. Now, the other factors affecting duty is methods of cultivation. Cultivation means before sowing to the crops, we are plowing the farm. When the land is properly plowed before sowing and made quite loose before irrigating, the soil will have high water retention. The water retention power of soil is increased. Thus, the number of watering can be reduced. 4 बार पानी देने की वजह हम 3 बार पानी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो मिट्टी की जो क्षमता है वो पानी का स्टोर करने की वो बढ़ जाती है. फर्दर, द यूज ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन, ये जो अभी नई टेक्निक जो निकली है, गिव हायर ड्यूटी ऑफ वाटर देन ओल्ड एंड कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन. सो which methods of cultivation you are using is also play very much role for high duty or low duty. It also depends on time and frequency of tilling. कितने टाइम आप अपना कल्टीवेशन करते हो, कितनी बार कल्टीवेशन करते हो, उस पर भी वो आधार रखती है. फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी, वो कौन से टाइप्स के क्रॉप आप अपने फार्म में प्लांट करते हो उस पर भी डिपेंड करती है. तो डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर वेरिंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर्स. लाइक wheat require less water and the rice require much water. So duty varies from crop to crop. Duty is low for crop which require large quantity of water, and duty is high for the crop which require less quantity of water. Now, it also depends on the base period of the crop.
In last lecture, you understand what is the base period of crop. Base period or crop period means the water at the time of sowing and the watering before harvesting, how many days, all the interval is called base period of the crop. In general, when the base period of crop is long, naturally more water is required and duty is low. And when the base period of crop is short, less water is required and duty is high. The requirement of water is not directly proportional to the base period of the crop. Afterward, the factor number 7, climatic condition of the area. आप कौन से एरिया में ये जो खेती कृषि कर रहे हो उस पर भी पूरा डिपेंड करता है. How is the climatic condition? And it is also depend on the season also, in winter or in monsoon. So the climatic condition which affect the duty, जो कौन सी बाबतों पर डिपेंड्स करती है. तो फर्स्ट वन टेम्परेचर, second wind, third humidity, and fourth rainfall. These all are the climatic conditions. So the temperature in Africa is more than our India, and the farm which are near the coastal area or seashore, there is a wind velocity is high and humidity also different. And you know, friends, rainfall is also different in different area. So due to high temperature and high wind, evaporation losses are very more. Therefore, duty is less. A humid atmosphere, the area near the seashore, the humid atmosphere reduce the losses of water. And in monsoon, where there is a rainfall, so we can reduce the irrigation water, and therefore its duty will be high. And where there is a rainfall is low, duty is also low. Then time of irrigation and frequency of cultivation. So in the initial stage of cultivation, when the land is not properly level and hence more than required quantity of water is applied, so naturally it will result in lower duty of water. And by cultivation, if proper slope and condition of the land is improved, with the age of the field and duty is increased. Now, when frequency is more, frequent cultivation of land reduce the loss of moisture through the weeds. आप खेत में देखोगे कि हम जो प्लांटेशन करते हैं उसके सिवा भी कई वीड्स निकल आते हैं, तो which and evaporation from soil is also reduce होता है, तो उसकी वजह से उसकी ड्यूटी इंक्रीज होती है. Moreover, frequent cultivation helps in maintaining the soil structure in good condition and duty is increase.
Now next one is quality of water. कौन सा पानी आप अपने इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं उस पर भी पूरा डिपेंड रहता है. If the irrigation water contains harmful salt and alkalis in appreciable amount, water will have to be applied in large quantity. जब जो पानी की क्वांटिटी अच्छी नहीं है तो हमें ज्यादा पानी देना पड़ता है. So that the salts are leach off, and this will in turn reduce the duty. कभी कभी जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसमें भी सॉल्ट ज्यादा होती है. तो मोर फर्टिलाइजिंग मैटर इन वाटर will cause less consumption of water, increase duty. Now method of assessment of irrigation water. So what is the method of assessment of irrigation water? If the assessment of water and charges of irrigation water are on the volumetric basis, how much quantity of water we are applying to the farm, the cultivators use the waste more carefully and the wastage is less. अगर हमें पानी खरीद के लेना होता है तो नेचुरली हम उसका वेस्टेज कम करते हैं. Therefore duty is high. On the other hand, if the assessment is based on a flat rate, based on the area and the cultivation, the wastage is more. अगर हम पानी आवर के हिसाब से देते हैं तो हम उसका ज्यादा वेस्टेज नहीं होने देंगे, और अगर हमें वो पानी पूरे दिन के हिसाब से मिलता है तो नेचुरली उसमें थोड़ा वेस्टेज ज्यादा होता है और therefore उसकी ड्यूटी लेस होती है. Now canal conditions. When we are using the irrigation by the canal, we can see the water is coming from the river by the canal. And canal are two types, lined canal and unlined canal. So what is the difference between lined canal and unlined canal? So in lined canal, the canal surface is plastered and well built, and in unlined canal it is not plastered. So we are using earthen canal. तो जो सिर्फ मिट्टी की कैनाल होती है जिसमें कुछ प्लास्टर नहीं होता है, तो नेचुरली द सीपेज एंड द परकोलेशन लॉसेस आर वेरी हाई. जो पानी हमें जो रिवर में से कैनाल थ्रू हमारे खेत में आता है तो उसमें क्या होता है कि पानी की कितनी क्वांटिटी होती है वो परकोलेट हो जाती है मिट्टी में और सीपेज ज्यादा होती है. तो क्या होता है, लॉसेस वेरी मच होता है. तो उससे हमारी जो ड्यूटी है वो लो रहती है. लेकिन अगर हमारी कैनाल होती है वो प्लास्टरिंग की होती है तो इसमें लॉसेस लेस होता है, सो ड्यूटी हाई हो जाती है. और कभी कभी क्या होता है कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि अगर प्लास्टरिंग और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल है वो जो अच्छा नहीं होता है, पुअर होता है, तो क्या कभी कभी वो गाबड़े पड़ जाते हैं. तो क्या होता है कि पूरी कैनाल में से पानी निकल कर पूरे खेत में घुस जाता है, और कभी कभी आप देखते हो कि पूरी फसल है वो बर्बाद हो जाती है. इतनी बड़ी कैनाल में मोटा गाबड़ा पड़ी जाए એના લીધે ખૂબ જ નુકસાન થાય છે. તો વર્ષ દરમિયાન કેનાલનું મેન્ટેનન્સ વર્ક પણ જોડે જોડે થયા કરવું જોઈએ. જો કેનાલની કન્ડિશન ખરાબ હોય અને મેન્ટેનન્સ વર્ક ના થાય તો ઘણું બધું પાણી બહાર નીકળી જાય અથવા જમીનમાં શોષાઈ જાય અથવા ક્યારેક તો વધારે પડતું પાણી ખેતરમાં જતું રહે તો પૂરેપૂરા પાકનું સત્યાનાશ વળી જાય. એટલે જે કેનાલની કન્ડિશન છે બહુ રોલ પ્લે કરે છે. સો
The canal with good maintenance will have a higher duty than those have a poor maintenance. क्योंकि कभी कभी कई कई फार्मर्स क्या अपने अपने खेत के पास से अगर कैनाल जाती है तो उसमें से पाइप लगा के पानी की चोरी करते हैं। कभी कभी तो वो कैनाल के आसपास वो पुलिस रखनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं कि लोग पाइप से ऑयल की चोरी करते हैं, तो वाटर की तो नेचुरली करेंगे। कभी वो जो कैनाल जाती है उसमें पाइप रख देते हैं, तो पाइप से सीधा पानी अंदर अपने खेत में चला आता है। तो ये सब जो मेंटेनेंस वर्क है वो देखना चाहिए। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टर ऑफ सॉइल एंड द सब सॉइल ऑफ कैनाल? इफ द कैनाल इज अनलाइंड and the flow through coarse grained permeable soil, the seepage and percolation losses will be high, and the canal flows through fine grained soil, the seepage losses will be less. Now you have to see that what is the coarse grained and what is the fine grained. देखो सॉइल होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, वो हमने अगले लेक्चर में देखा कि एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल। तो कभी कभी क्या कई सॉइल ऐसी होती है कि उसमें जो कोर्स ग्रेन होते हैं तो वो पानी उसमें ज्यादा सीपेज होता है, परकोलेशन भी ज्यादा होता है, और जो छोटे छोटे ग्रेन वाली जो होती है फाइन ग्रेन सॉइल, तो उसमें क्या होता है कि सीपेज लेस होता है, तो उसमें ड्यूटी हाई होती है। The last factor which affect the duty is character of soil and subsoil of the irrigation field. Which type of soil? If the soil and subsoil of the field to be irrigated, ये जो आगे हमने डिस्कस किया वही है कि जैसी कैनाल में सॉइल होती है और इस तरह की सॉइल हमारे खेत में भी होती है, तो हमारी सॉइल अगर कोर्स ग्रेन वाली होगी तो परकोलेशन लॉस हाई होगा, और हमारी सॉइल जो फाइन ग्रेड सॉइल होगी तो उसमें थोड़ा लेस होगा। सो ड्यूटी इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी 7 मार्क्स का वे so many times asked in examination in the GTU paper and in the remedial paper. So you have to write all the methods number wise and have to explain each and every factors. Now ये हमने फैक्टर्स देखे, तो हम अपने खेत में और अपने फार्म में ये जो ड्यूटी है वो किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेथड्स टू improve the duty? When once the various factors of affecting duty are properly understood, the duty can be improved by making those factors less effective. We tend to reduce the duties. So number 1, आप किस तरह की suitable method of applying water to the crops should be used? कौन सी मेथड आपको अपने क्रॉप के लिए यूज करनी है वो आपको डिसाइड करने का है। नंबर 2, the land should be properly plowed to the required depth and leveled before sowing to the crop. आप देखते हो कि अभी अभी मानसून की शुरुआत है, तो खेतों में ये ट्रैक्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर और विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक, ये जो फार्मर होता है वो किस तरह अपने खेत को प्लाउ करता है और उसके बाद वो लेवल भी करता है। आप देखना कि पूरा खेत कितना बढ़िया दिखाई देता है जब आप एक बड़ा लकड़ी का जो होता है जिसे गुजराती में हमार कहते हैं, तो उससे क्या लेवल होता है। तो बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप एट द रिक्वायर्ड डेप्थ तक प्लाउइंग करना नेसेसरी है, तो इससे हमारी ड्यूटी इंप्रूव होती है। नंबर 3,
द लैंड शुड बी कल्टिवेटेड रेगुलरली। ये लैंड है जो आप कल्टीवेट करते हो, तो फ्रीक्वेंट कल्टीवेशन से क्या होता है, जो मॉइस्चर का जो लॉस होता है वो कम होता है। स्पेशली व्हेन द ग्राउंड वाटर इज विद इन द कैपिलरी रीच ऑफ द ग्राउंड सरफेस। तो आप ज्यादा कल्टीवेशन करोगे तो उसकी पूरी ड्यूटी हम हाई कर सकेंगे। नंबर 4, द कैनाल शुड बी लाइन्ड। अब आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि कौन सी कैनाल लाइन्ड है और अनलाइन्ड है। तो अगर कैनाल अच्छी होगी, प्लास्टर की होगी, कंस्ट्रक्टेड, वेल कंस्ट्रक्टेड होगी, तो इट रिड्यूस सीपेज एंड परकोलेशन लॉसेस एंड वाटर एकदम जल्दी और विद हाई वेलोसिटी कन्वर्ट क्विकली। तो इससे क्या होगा कि हमारा पूरा इवोपरेशन लॉसेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। नाउ जो फिफ्थ जो आइडिया है वो क्या है, पैरेलल कैनाल शुड बी कंस्ट्रक्टेड। अगर दो कैनाल है वो साइड बाय साइड जा रही है तो FSL फुल सप्लाई लेवल विल बी लोअर्ड एंड लॉसेस विल थस बी रिड्यूस। उससे क्या होता है, हमारा लॉसेस रिड्यूस होता है। अगर दोनों कैनाल पास पास में जाती है ना, तो द आइडियल लेंथ ऑफ द कैनाल शुड बी रिड्यूस। अगर जो कैनाल की जो लेंथ है वो जो कम होगी तो नेचुरली इवोपरेशन और दूसरे लॉसेस है वो कम हो गए। नाउ जो हम जब अपने कैनाल के अलाइनमेंट करते हैं, कैनाल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये बात ध्यान में रखने की कि जो सॉइल है वो सैंडी, और अगर जो रोक वाली हो तो वो फिसड रोक वाली नहीं चाहिए, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। इससे हमारी ड्यूटी हाई हो सकती है। तो कैनाल शुड बी सो अलाइंड दैट द एरियाज टू बी कल्टिवेटेड आर कॉन्सेंट्रेटेड along it. Now हमें देखा कि जो ड्यूटी है वो क्वालिटी ऑफ वाटर पर डिपेंड करती है। तो हम जो सोर्स पसंद करें पानी के लिए, वो द सोर्स ऑफ सप्लाई शुड बी सच दैट इट गिव्स ए गुड क्वालिटी ऑफ वाटर। अगर पानी की क्वालिटी अच्छी होगी, उसमें सॉल्ट नहीं होगा, कोई एसिड नहीं होगा, कोई अल्कलाइन नहीं होगी, तो क्या है कि हमारी ड्यूटी नेचुरली बढ़ जाएगी। नाउ द रोटेशन ऑफ क्रॉप मस्ट बी प्रैक्टिस। हम एक ही क्रॉप बार बार ही ग्रो करेंगे और प्लांट करेंगे तो क्या होगा कि ड्यूटी लो हो चली जाएगी। तो रोटेशन ऑफ द क्रॉप इज नेसेसरी। अगर आप अलग अलग तरह के क्रॉप हर बार प्लांट करोगे तो क्या है कि ड्यूटी हाई हो जाएगी ना। वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ असेसमेंट शुड बी यूज। हमें निश्चित मात्रा में खेतर को पानी देना चाहिए ताकि उसका वेस्टेज कम हो, क्योंकि जो चीज मुफ्त में मिलती है और ज्यादा मिलती है तो लोग उसका वेस्टेज ज्यादा करते हैं। अगर हमें वो चीज महंगी मिलेगी और कम मिलेगी तो नेचुरली हम उसका लेस यूज करेंगे और उसमें वेस्टेज कम होगा और ड्यूटी हाई होगी। और द फार्मर मस्ट बी ट्रेन्ड इन द प्रॉपर यूज ऑफ वाटर। ये जो फार्मर होते हैं उसको ट्रेनिंग अच्छी तरह ट्रेन किए गए होने चाहिए। सो क्या है कि वो अपना जो प्रॉपर यूज ऑफ वाटर कर सके, सो दैट दे अप्लाई करेक्ट क्वालिटी ऑफ वाटर इन द करेक्ट टाइमिंग। अगर मान लो कि जो फार्मर है उसको किस तरह पानी देना है वो नहीं आता है तो क्या है कि वो कंफ्यूज हो जाता है और उससे हमारा पानी का जो वेस्ट होता है वो ज्यादा होता है। तो जो फार्मर है वो ट्रेन होना चाहिए तो ही वो पानी का प्रॉपर यूज कर सकेगा। एंड द लैंड शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द फार्मर्स सो दैट दे गेट ओनली एज मच लैंड एज दे आर कैपेबल ऑफ मैनेजिंग इट। अगर आपके पास जमीन ज्यादा है और आप उसको हाउ टू मैनेज, आप कैपेबल नहीं हो उसको मैनेज करने के लिए, तो क्या है कि आप बहुत पानी का वेस्टेज करोगे
उससे हमारी ड्यूटी लो हो जाएगी। तो अगर आपकी क्षमता नहीं है पानी को रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की, तो आप फार्मर की संख्या या तो बढ़ा दो या एक फार्मर को लेस क्वांटिटी ऑफ लैंड दो, सो दैट he can manage it in good manner. Now the research station should be established. Research station should be established in various locality to study the soil, the seed and the conservation of moisture. ये जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो क्या करती है, उनके पास लेबोरेटरी होती है, तो क्या है वो सॉइल का स्टडी करते हैं, ये तो आपकी सॉइल किस तरह की है, तो सॉइल का स्टडी करके आप किस तरह का क्रॉप ग्रोन करना चाहते हो, आपकी सॉइल है वो मॉइस्चर कंटेंट करती है कि कंजर्वेशन करती है कि नहीं करती है, आप कितना पानी यूज करोगे, किस तरह का क्रॉप ग्रो करोगे, तो आपको एडवाइस लेनी चाहिए वहाँ रिसर्च स्टेशन से। वो अच्छे फार्मर जिसके पास बड़ी ज्यादा जमीन होता है वो हर साल अपनी जो सॉइल होती है उसका लेबोरेटरी टेस्ट करवाते हैं, ताकि उन्हें मालूम पड़े कि हमारी सॉइल है उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स है, कौन कौन से ये जो नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, वो सब की मात्रा जो हमारे क्रॉप के लिए जरूरी है वो ज्यादा है कि कम हो गई है। हमारी जो सॉइल है उसको ज्यादा पानी चाहिए कि कम पानी चाहिए, तो वो सब उसको रिसर्च स्टेशन से मालूम पड़ता है। तो प्रॉब्लम कंसर्निंग द इकोनॉमिकल यूज ऑफ द वाटर शुड बी स्टडीड, कि कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा पाक किस तरह से हम ग्रो करें और हमारी ड्यूटी किस तरह से हाई हो, इसके लिए रिसर्च स्टेशन जरूरी है। एंड द कैनाल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ शुड बी एफिशिएंट, रिस्पॉन्सिबल एंड ऑनेस्ट। The operation of the canal system should be such that the farmers both at the heads of the canal as well as at the tail end get water as and when they need it. देखो कई लोगों के खेत होते हैं वो कैनाल के पास होते हैं और कई फार्मर के खेत होते हैं वो कैनाल से दूर होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका खेत है, जिसका कैनाल के पास खेत है उससे ज्यादा पानी मिले और पीछे वाला जो एट द एंड हो, टेल एंड, वहां कम पानी मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो कैनाल का पानी जो स्टाफ रखते हैं जो पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो भी ऑनेस्ट होना चाहिए। नहीं तो कई फार्मर क्या करेंगे कि उसको थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे और अपने खेत में ज्यादा पानी लेंगे, वो डिसऑनेस्ट हो जाएगा। और जो फार्मर उसको पहचानते नहीं है उसको कम पानी देगा। तो मतलब कि हमें ये सभी बाबतों का ध्यान रखना चाहिए कि कई फार्मर ऐसे रहते हैं कि जो पानी की चोरी करते हैं, उसे भी है वो उसके भी प्रिकॉशन लेने चाहिए और एकदम हॉनेस्टली पानी देना चाहिए। नाउ आपने देखा कि जब पानी नदी में से, कैनाल में से अपने खेत में आती है तो इवापोट्रांसपिरेशन, ये मैटर हम थोड़ी बहुत आगे भी लेक्चर में भी पढ़े हैं, इसलिए थोड़ा कम समय देंगे। तो इवापोट्रांसपिरेशन डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर ट्रांसफर्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ और रिटेन्ड इन द प्लांट टिश्यू प्लस द मॉइस्चर इवापोरेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सॉइल। अगर हम खेतों को पानी देते हैं तो जो उसके आसपास की जमीन होती है उसमें भी पानी जाता है, तो उसका भी इवापोरेट होता है। और जो पानी जो प्लांट है उसके रूट से उसके लीव्स तक जाता है, उसके पर्ण तक जाते हैं, तो तभी में भी पानी का इवापोरेट होता है। तो पानी का इवापोरेट दोनों जगह से होता है। जब कैनाल में से पानी आता है तो वहां से भी पानी गर्मी की और धूप की वजह से उड़ जाता है, और ये जो प्लांट की जो टिश्यू है, जो लीव्स है, उसके जो उसकी डालियां होती है, उसका प्रकांड होता है, उसमें से भी पानी चला जाता है, तो उसको ट्रांसपिरेशन लॉस कहते हैं। तो
ये जो फैक्टर्स होते हैं कि किस तरह के होते हैं कि जो हमारा पानी है, जो हमारे जो नदी से या सोर्स से आता है हमारे खेतों तक, तो कौन से मतलब जो जो लॉसेस होते हैं वो क्या है, तो डिपेंड किस चीज पे करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपो ट्रांसपीरेशन। तो क्या स्टूडेंट डियर फ्रेंड्स, जो वेदर होता है वो बहुत मायने रखता है कि कौन से वेदर में आप मॉनसून क्रॉप्स ले रहे हो कि खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप ले रहे हो, उस वेदर का भी इस पर इफेक्ट करता है। क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक, आपका क्रॉप कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। आप किस तरह मैनेज करते हो इरिगेशन को, उस पर भी डिपेंड करता है। एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, बाद में सोलर रेडिएशन, जो गर्मी है कि ठंडी है कि इस पर यूएफओ ट्रांसमिशन उस पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये सभी जो बाबत है वो यूएफओ ट्रांसपिरेशन के लिए मायने रखती है। नाउ हमने देखा कि व्हाट इज द कंजर्वेटिव यूज। तो कंजर्वेटिव यूज मीन्स इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन। तो हम जो पानी देते हैं प्लांट को, उसमें से कौन सा भाग, जो पानी की जो क्वांटिटी है वो इवापोरेशन हो जाता है और ट्रांसपिरेशन हो जाता है। तो उसको डायरेक्ट मेजरमेंट करने की जो मेथड है उससे लाइसीमीटर कहते हैं। तो ये जो लाइसीमीटर है टैंक एंड लाइसीमीटर मेथड भी बोलते हैं, वो डायरेक्ट मेजरमेंट की मेथड है। तो द कंजर्वेटिव यूज इज डिटरमाइंड बाय इरिगेटिंग ए स्मॉल प्लॉट with no later inflow. Conservative use is difference of water applied to that collected through the pervious bottom and collected in the pan bottle. इसमें क्या होता है कि एक बड़ा टैंक हम रखते हैं और उसका जो बॉटम होता है वो परवियस होता है, ताकि हम जो पानी उसको ऊपर से जो प्लांट को देते हैं तो उसका बॉटम परवियस होने की वजह से क्या होता है कि वो नीचे की जो पान होता है जो रखे हैं उसमें सब कलेक्ट होता है। तो उससे हम क्या होता है कि कितना हम जितना भी पानी उसको देते हैं, कि मान लो कि हमने 5 लीटर पानी दिया और नीचे और उसके जो परवियस बॉटम के नीचे जो बॉटल या पात्र रखा है उसमें 2 लीटर पानी इकट्ठा हुआ, उसका मतलब हुआ कि जो 3 लीटर जो पानी है उसका कंजर्वेटिव यूज हो गया है। बरोबर, वेरी सिंपल मेथड है। नाउ फील्ड एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स क्या है कि ये छोटा नहीं थोड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट हो गया है, उसमें हम फील्ड का यूज करते हैं। तो ये मोर डिपेंडेंट मेथड है। वाटर एप्लीकेशन विथ नो रन ऑफ एंड डीप परकोलेशन। उसमें क्या होता है कि हम ये जो पूरा फील्ड होता है उसको पानी देना पड़ता है। तो क्या होता है इसमें इनिशियली यील्ड इंक्रीज विथ एप्लीकेशन। पहले हम पानी देते हैं तो क्या होता है कि उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है और बाद में यील्ड डिक्रीज हो जाता है। देन उसमें थोड़ी डेटा हमें लेना पड़ता है और उसको इरिगेशन वर्सेस यील्ड, कितना पानी दिया और कितना क्रॉप प्राप्त हुआ, उसका हम ग्राफ जोड़ना पड़ता है। और उसके बाद ऑप्टिमम कंजर्वेटिव यूज, ब्रेकिंग और पीक पॉइंट ऑफ कर्व से हमें मालूम पड़ता है। जो थर्ड है वो सॉइल मॉइस्चर स्टडी है। तो जो सॉइल मॉइस्चर स्टडी है तो दिस मेथड इज specially suitable to the area where soil is fairly uniform and ground groundwater is deep, so that
it does not affect the fluctuation in soil moisture within the root zone of the soil. The soil moisture measurements are done before and after each watering. पानी देने के पहले और पानी देने के बाद जो हमारी जमीन है उसमें कितना मॉइस्चर है उसका मेजरमेंट करता है. The quantity of water extracted per day from the soil is computed for each period. तो जो पानी हम देते हैं उसमें से कितना पानी निकल जाता है वो हमें कंप्यूट करना पड़ता है और बाद में उस पर एक जो कर्व है वो रेट ऑफ यूज वर्सेस टाइम ड्रॉ करना पड़ता है और बाद में उसका स्टडी करना पड़ता है. देन हम सोइल मॉइस्चर डिटरमाइन कर सकते हैं. जो लास्ट है वो इंटीग्रेशन मेथड है. तो उसमें क्या होता है कि बड़ा लार्ज एरिया होता है वो सिलेक्ट करना पड़ता है और टोटल जो एरिया है वो क्या करना पड़ता है कि हम वो डिवाइड करना पड़ता है कि एरिया अंडर क्रॉप्स, एरिया अंडर वेजिटेशन, एरिया अंडर पॉन्ड्स एंड एरिया अंडर बेयरलैंड. ये पूरा जो एरिया होता है मतलब बहुत बड़ा एरिया होता है तो उसको डिवाइड करके द कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर for the entire area is found in the volume unit hectare per meter. In terms of the depth of water, it can be found by dividing the volume of water and the total area of the land. Now the last what is inflow and outflow studies. So for annual conservative use of large area, the equation is used. U means valley conservative use, I means total inflow during the year, P means yearly precipitation on the valley area, GS means ground storage at the beginning of the year, G means ground storage at the end of the year. ये पूरा ईयर के हिसाब से गिनना पड़ता है. एंड कैपिटल आर इज ईयरली रन ऑफ, कितना पानी खेतों में से बह जाता है और कितना पानी हम उसको देते हैं, कितनी बार जो प्रेसिपिटेशन होता है वो सब गिनना पड़ता है. तब हम इनफ्लो और आउटफ्लो स्टडी कर सकते हैं. और जो दूसरी मेथड है वो सब मेथड है वो इक्वेशन बेस्ड है. तो इस मेथड में आप देखेंगे कि टेम्परेचर मेथड्स, रेडिएशन मेथड्स, बहुत कॉम्बिनेशन मेथड्स, पानी ऑपरेशन मेथड्स, ब्लेनली-क्रीडल फॉर्मूला एंड हारग्रीव्स क्लास ए पानी ऑपरेशन मेथड का भी यूज किया जाता है. अब हम इस चैप्टर में ये जो कुछ सम है उसका भी हमें स्टडी करना पड़ता है. तो ये जो एग्जांपल हम आपको थोड़ा बहुत समझाते हैं, अगर आपको कुछ डिफिकल्टी जो उसमें सॉल्व करने में पड़े तो हम उसको दूसरे लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे. तो मैं थोड़ा बहुत उसको समझा देता हूं, बाद में अगले जो लेक्चर है उसमें आपको पूरा समझाऊंगा कि एन इरिगेशन कैनल जिसका ग्रोस कमांड एरिया 80,000 हेक्टर है, तो उसमें से 85% इज कल्चरेबल
इरिगेबल है, द इंटेंसिटी ऑफ खरीफ सीजन इज 30% है एंड रवि सीजन इज 60% है। तो हमें क्या करने का है कि फाइंड द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड टू द हेड ऑफ द कैनल। इफ द ड्यूटी एट इट्स हेड इज 800 हेक्टर्स पर क्यूमेक फॉर खरीफ सीजन एंड 1700 हेक्टर्स प्रति क्यूबिक फॉर रवि सीजन। तो उसमें क्या करने का है कि कितना डिस्चार्ज हुआ वो हमें फाइंड करने का है। तो हमें क्या क्या दिया गया है, तो हमें ग्रोस कमांड एरिया दिया गया है। तो उसका अगर आप उसको कैलकुलेटर की वजह से कैलकुलेट का यूज करके करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा कि उसमें जीसीए है वो 8000 हेक्टर्स दिया गया है। वो जीसीए है, जीसीए में से 85% है वो कल्चरल कमांडेड एरिया है कि जो इरिगेट होता है, तो वो 85% है। तो 85% ऑफ 80,000 कितना होगा, 68,000 हेक्टर होगा। बाद में क्या दिया है कि उसमें ये जो एरिया दिया है कि 30% खरीफ सीजन का और 60% रवि सीजन का। तो एरिया अंडर खरीफ सीजन है वो 30% ऑफ 68,000 इज 20,400 हेक्टर्स एंड एरिया अंडर रवि सीजन इज 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.60 इज 40,000 बाय 800 हेक्टर्स। तो कितना वाटर हमें चाहिए, तो पहले हमारे पास एरिया है और उसके बाद उन्होंने क्या दिया है हमारे प्रॉब्लम में कि वो हमें डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए बोलते हैं और वो कहते हैं कि जो ड्यूटी दी गई है, जो रवि सीजन के लिए ड्यूटी है वो 800 है और जो खरीफ सीजन के लिए वो ड्यूटी है वो 1700 है, बराबर। तो एरिया है, हमें एरिया दिया गया है और उस एरिया को हम ड्यूटी से डिवाइड करेंगे तो हमें जो कितना क्यूमेक वो मिल जाएगा। तो जो हमारी खरीफ सीजन है उसका एरिया है 20,400 डिवाइडेड बाय ड्यूटी 800, सो मिलता है 25.5 क्यूमेक। एंड द वाटर रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ द कैनाल इन द रवि, तो एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी, तो 40,800 डिवाइडेड बाय 1700, सो उससे 24 क्यूमेक मिलता है। So you can see the water requirement in Kharif is more, so that the canal is designed to carry a discharge of 25.5। तो कोई प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो जीसीए दिया है उसमें से 85% सीसीए है और जो एरिया है वो 30% और 60% खरीफ सीजन और रवि सीजन के लिए है। तो एरिया डिवाइड बाय ड्यूटी करेंगे तो हमें डिस्चार्ज क्यू मिल जाएगा और उसके हिसाब से। और एक दूसरा एग्जांपल वो ऐसा ही है, उसमें क्या है कि जो सीसीए है वो डायरेक्ट दिया गया है। ये ऐसे एग्जांपल आपकी बुक है जो इरिगेशन के इंजीनियरिंग की, उसमें दिए गए हैं। तो उसमें जो अगर आपको सीसीए दिया गया है 2,600 हेक्टर्स, तो उसमें क्या करने का है कि हमें ये जो दूसरा जो प्रॉब्लम्स पे क्या दिया गया है कि आउट ऑफ विद द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर पेरेनियल शुगर कैन एंड राइस क्रॉप्स आर 20% एंड 40%। तो जो शुगर कैन मतलब शेरड़ी, तो शुगर कैन के जो फार्म है उसका एरिया कितना है, तो 20% है। तो 20% मीन्स 2600 है, 2600 उसका 20% 520 होता है। और ये जो राइस है उसका एरिया वो कितना 40% है। तो 2600 मल्टीप्लाई बाय 40
0.4 तो 1040 मिलेगा। बाद में जब आगे वाले सम में हमने किया है कि वाटर कितना जरूरी है, उसके लिए हम एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी करेंगे। तो शुगर कैन के लिए भी हमें कितना क्यूमेक पानी चाहिए वो मिल जाएगा, 520 डिवाइडेड बाय 750, दोनों की ड्यूटी भी दी है, शुगर कैन की ड्यूटी भी दी है और राइस की भी ड्यूटी दी है। तो एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी 520 डिवाइडेड बाय 750.694 मिलेगा। और वाटर रिक्वायर्ड फॉर राइस, तो एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी 1040 डिवाइडेड बाय 1800, तो वो 0.577 मिलेगा क्यूमेक। आप देख सकते हो कि जो नेचुरल है कि जो शुगर कैन की जो पेरेनियल क्रॉप, उसमें जो सेड़ी है उसमें पानी ज़्यादा चाहिए, इट विल रिक्वायर वाटर थ्रू आउट द ईयर, तो पूरे साल के लिए उसमें पानी चाहिए। और राइस है उसमें थोड़ा कम चाहिए। और दोनों का जो हम समेशन करेंगे तो 0.694 और प्लस 0.577 दोनों का मिला के 1.27 क्यूमेक ये जो डिस्चार्ज है, जरूरी डिस्चार्ज, वो हमें मिल जाएगा। अच्छा, ये इस तरह के जो एक दो सम आप अपने घर पे भी जरा सॉल्व करने का, और कोई डिफिकल्टी हो तो हम आगे में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5। ओके, थैंक यू।